Hello students, I hope that you all are doing well. So today we are going to start with the next poem of your half yearly, that is Portrait of a Prince, okay, which is written by Dennis Martindale. Okay, so firstly I have always told that the poets are very important when you study a poem. So you have to remember the name of the poet, that is Dennis Martindale. Okay, so in this poem, the word prince is referred to tiger. यहाँ पे प्रिंस वर्ड का मीनिंग टाइगर से है. यहाँ पे पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर. प्लीज कीप राइटिंग, कीप नोटिंग डाउन द मीनिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू. Portrait means picture and prince means tiger. So this poem talks about a picture of a tiger. Now you can see on the next page the picture of the tiger is also given. So the poet Dennis Martindale is very fond of wildlife. He is very fond of wild animals. उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं wildlife beauty, and that's why उन्हें पिक्चर इतनी अच्छी लगी that he wrote a poem on this. Okay, so in this poem, Dennis Martindale is trying to tell about the physical appearance, the physical beauty as well as the emotional, the inner beauty of tiger. Okay, its inner features. Let's begin with this poem. First stanza. Behold the tiger's face up close with all its deep-edged lines. Now you can see the first word is behold, and you can see that in each stanza the first word is behold, and the meaning of behold is observe. Okay, so the poet is asking you to observe the tiger's face up close, that आप उसके टाइगर के फेस को क्लोजली ऑब्जर्व करो with all its deep edged lines. Deep edged lines means his black stripes. आपने देखा ना टाइगर्स के स्ट्राइप्स होती हैं. Okay, so the poet is asking you to note, to please see these black line, these stripes on the tiger's face. Okay, so with like charcoal ridges by his nose. ऐसा लगता है कि उसके नोज के पास जो black है, that charcoal means black beauty, कि उसकी जो black beauty है that makes the tiger more attractive. How clearly each defines, and her line इतने अच्छे से उसके face पे है that it looks more handsome. Okay, so the first stanza is talking about the tiger's face. Now second stanza. Behold the tiger's ears erect. Now this stanza is talking about tiger's ears. Now erect means upright. आपने देखा है ना जो टाइगर के ears होते हैं वो हमेशा ऊपर खड़े होते हैं. Aware of all that breathes. लेकिन ना वो जो उसके कान हैं, उसके टाइगर के जो ears हैं, वो हर एक सांस, हर breath means सांस. ओके, सो हर एक सांस को वो एकदम से ऑब्जर्व कर लेता है. ही इज अवेयर. अगर उसके आसपास भी कोई होता है, चाहे दिखे ना दिखे, वो ऑब्जर्व कर लेता है. विद मेंटल फिल्टर्स दैट सिलेक्ट. मेंटल फिल्टर्स मीन सेंस ऑफ हियरिंग. उसकी कानों की सेंस ऑफ हियरिंग इतनी तेज है दैट इफ ही इज हियर एंड समवन इज वेरी फार, सो उसको रियलाइज हो जाता है कि कोई यहाँ पे है. द रसलिंग ऑफ द लीव्स मीन्स अगर एक पत्ता भी रसल होता है, इधर से उधर होता है, खराब होता है, कुचलता है, सो उसके कान में वो आवाज जाती है. नाउ द थर्ड पैराग्राफ टॉक्स अबाउट टाइगर्स आईज. Behold the tiger's eyes that stare. Stare means looking for a long period of time. किसी चीज को बहुत लंबे समय तक देखना, घूरना जिसे हम कहते हैं. तो जो टाइगर्स की आईज है वो जब भी उसके सामने कोई आता है उसको स्टेयर करता है, घूरता है. एज इफ राइट थ्रू योर सोल. वो आपको फेस ही नहीं, आपको ऐसे घूरता है कि आप अंदर से ही डर जाते हो. टू चैलेंज यू बी वाइज एंड बी वेयर. क्योंकि वो अपनी आइस आपको घूर के चैलेंज कर रहा है कि सावधान हो जाओ, बी वाइज, समझदार हो जाओ कि मैं ऐसा नहीं हूँ. इफ आई एम स्टेयरिंग आई एम गोइंग टू ईट यू, तो जस्ट बी वेयर. टेक केयर हु इज इन कंट्रोल. सो वो कहता है, टाइगर उसको स्टेयर करके बताता है कि ध्यान में रखो कौन कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में सिचुएशन. सो वी नो व्हेन वी हैव अ टाइगर एंड अ पर्सन face off, so of course the situation is in the control of tiger. Situation जो है वो टाइगर के ही कंट्रोल में होगी. Now the fourth stanza talks about tiger's nose. जो fourth stanza है हमारा वो टाइगर की नोज के बारे में बात कर रहा है. Behold the tiger's nose below. ऑब्जर्व कीजिए टाइगर की जो नोज है. It tells him distant facts. Distant facts means that the smelling sense of the tiger is so strong कि उसे दूर की चीजें भी इतनी आसानी से स्मेल हो जाती हैं. Though out of sight, he is in the know.
चाहे उसके सामने कोई हो चाहे उसके सामने ना हो, पर अगर उसके आसपास कोई है तो उसको उस चीज़ की स्मेल हो जाती है। सो वॉच आउट इफ ही एक्ट, तो आप देखिए कि वो कैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट स्टैंजा, द फिफ्थ स्टैंजा टॉक्स अबाउट इट्स माउथ। Behold the tiger's tight lipped mouth। आप देखिए जो उसका टाइट लिप माउथ है ना, आप देखेंगे ना उसकी जो माउथ जो इस तरीके से होता है, लिप्ड होता है, टाइट होता है। He hides his daggers well। Now daggers means शॉर्ट शार्प टीथ। तो जो टाइगर है वो अपने जो दांत है, नुकीले दांत है, उनको अच्छे से हाइड कर लेता है अंदर। हिज टॉप सेट नॉर्थ, हिज ड्रॉप सेट साउथ। उसके टाइगर्स ऊपर भी होते हैं मुंह में और नीचे भी होते हैं। What tales those teeth could tell। Tales means stories। और वो क्या स्टोरीज बताते हैं, दैट कि उसने कैसे अपने इन टीथ से लोगों को खाया, ही हैज हंटेड। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारा टाइगर है वो एपेक्स प्रेडेटर होता है। एपेक्स प्रेडेटर मीन्स द टॉप ईटर। आपने देखा होगा ना साइंस में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। सो टाइगर की इतनी इंपॉर्टेंस है। वाई डू वी से ऑलवेज सेव टाइगर्स, बिकॉज इफ टाइगर्स विल नॉट बी देयर, सो क्या होगा, हमारे जो दूसरे एनिमल्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे, लाइक काऊ और यू कैन से अदर एनिमल्स। अब वो फिर क्या करेंगे, वो सारी हमारी ग्रास खा देंगे जब उन्हें कोई खाने वाला नहीं होगा। सो हमारा ओवरऑल जो भी लैंड है दैट विल बिकम डेजर्ट वन डे। That's why it is said that it is very important for the existence of tigers. Now the sixth stanza talks about the tiger's neck। टाइगर के गले के बारे में बात करेंगे। That behold the tiger's neck so still। Still means straight। आप देखो, ऑब्जर्व करो कि जो टाइगर की नेक है, गला है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। एंड poised with regal grace। poised means confident। वो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो किसी से नहीं डरता है। एंड regal grace, regal means डिग्निफाइड। वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से बहुत आप कह सकते हैं प्रिंस की तरह चलता है। पोर्ट्रेइंग हियर्स द प्रिंस विल। पोर्ट्रेइंग मीन्स शोइंग। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो एक प्रिंस की तरह, वो उसी का ही राज चल रहा है। डिस्पाइट द ह्यूमन रेस, चाहे उसके सामने ह्यूमन क्यों ना आ जाए, चाहे उसे पता है कि ह्यूमन एनिमल्स जो ह्यूमंस होते हैं वो प्रिंस होते हैं, बट ही ऑलवेज एक्ट्स एज अ प्रिंस। नेक्स्ट स्टैंजा इज सेवेंथ स्टैंजा। Behold the tiger's sovereign style। जो टाइगर का sovereign means रॉयल स्टाइल है, आप उसको ऑब्जर्व करो। हिज सेंस ऑफ हु ही इज, उसको पता है टाइगर को कि वो कौन है, वो कैसे बिहेव करता है। हिज विक्ड वेज, हिज कवरिंग हील, उसके जो चालाक तरीके हैं। विक्ड वेज मीन वो अपने किन चालाक तरीके से हंट कर लेता है। उसकी जो स्माइल होती है वो बहुत ही शातिर होती है। हिज फाइनल पार्टिंग किस, जो एक तरीके से यहाँ पे गील जो अपनी बता रहा है, तो वो अपनी जो उसकी फाइनल पार्टिंग किस मीन्स वो आपको ऐसा लगता है कि वो मुझसे दोस्ती कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही चालाक होता है, बिग्ड होता है। नाउ लास्ट 8th stanza। Behold the tiger's treachery। treachery means that you should never trust। tiger is not a trustworthy animal। आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। that if he is smiling while looking at you, so आप उसको ट्रस्ट कर लो। no। Flee from his handsome grin। grin means smile। उसकी स्माइल को देख के उसके झांसे में मत आओ, एकदम वहां से फ्ली हो जाओ। फ्ली मीन्स रन अवे। फॉर इन अ रेस, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि एक रेस में आई थिंक यू विल सी द टाइगर्स ऑलवेज विन। अगर आप देखोगे जब टाइगर्स के और ह्यूमन की रेस होती है, कॉम्पिटिशन होता है, सो हमेशा if not हमेशा, I can say if not always, then 99.9% tigers always win। so don't trust tiger, don't come into his trap of his his royal style or his smile। no, beware of him because he's challenging you and just flee, अब वहाँ से भाग जाओ। so you have seen that in the first stanza the tiger's eyes are shown, in second its ears, in third its eyes, in fourth its nose, in fifth its its mouth, in sixth its neck, and in seventh and eighth about his smile, his wicked ways, his everything that he does वो उसमें दिखाया गया है। प्लीज नोट दैट दिस पिक्चर ऑफ टाइगर, द पोर्ट्रेट ऑफ टाइगर जिसके बारे में डेनिस मार्टिनडेल ने एक्सप्लेन किया, दिस portrait has been drawn by Stephen Gafford। Stephen STEPHEN GAYFORD। so Stephen Gafford ने ये पिक्चर बनाई एंड डेनिस मार्टिनडेल को इतनी अच्छी लगी that he wrote a poem on this describing the tiger। okay, now just let's talk about the rhyme scheme of the poem, that's very important।
सो राइम स्कीम क्या होती है कि किस सेंस में, किस तरीके से पोएम को डिजाइन किया गया है. सो यू कैन सी द फर्स्ट लाइन, बिहोल्ड द टाइगर्स फेस अप क्लोज. क्लोज वर्ड है, तो हम वहाँ पे ए लिखेंगे with all its deep edged lines. अब closer lines मैच नहीं कर रहे, so we keep it as B. Like charcoal ridges by his nose. Now see, close and nose are same. So इस पे हम दोबारा लिखेंगे A. How clearly each defines. Now lines and defines जो वो सेम हो रहा है, तो हम इस पे B लिखेंगे. So the rhyme scheme is A B. Means the first and the third lines sound same and the second and the fourth lines of the stanza sound same. I hope that this poem is clear, and if there is any doubt or any query, you may comment in the section and then I will revert to you.